Hello, IIT aspirants. How are you guys doing? I welcome you to the platform of Infinite Vision. This is a course on coordinate geometry. This is lecture number 7. As you know, in first 6 lectures, we discussed the basics of coordinate geometry. We also did some portions of straight line, and we also did a lot of problem solving. Now, as we go in lecture number 7, the complexity level of the course is going to go on a higher side. As you know, if you want to pursue great courses from one of the best colleges in the country, then you need to crack JEE Mains and JEE Advanced. And the area in which they really test you is your ability to do problem solving, that is problem solving skill. Now, to master this skill of problem solving skill, the first necessary step is that you need to remember these concepts. You need to memorize this formula, this derivation, and how this concepts are building. If you are not able to memorize them, it means the second aspect of the problem solving, that is the application, you won't be able to do that. So the first necessary step is to memorize these formulas, memorize these techniques. That is why we follow the protocol of talking about the big ideas which we covered in our previous lectures. If you are not able to remember those big lectures, it means the application part, the second aspect of the problem solving, will always go missing, and you won't be able to master that. So how do you memorize these results? How do you memorize these concepts? For memorizing this concept, for memorizing these results, you need to have a relentless practice and indefinite repetition. Now, when I say practice and repetition, that means your self-studies. So today, I also want to talk about a little bit about the online learning which you have been engaged. As you know, we are under lockdown due to pandemic, and it's almost 6 months now, and we have been relying too much on internet for our coaching, for our mentoring, for our studies. So here I'll just give you a quick tip that how you can actually master and extract the best out of internet, and you can neglect the negative aspects of internet, so that you do not get distracted from your pursuit to get the best colleges of the country, to get the best courses in the country. Now, for that, what you need to do is, first, you need to limit your screen time. You do not have to go into the internet world for really long time. If you have a lecture scheduled on your student portal, just go to your student portal, watch your lectures, and then walk away right just after the lecture is over. If your lecture is being telecasted on YouTube, just go to the YouTube channel, follow the lecture, do not get into the links and the recommended videos. Again, that will take away your screen time. So whenever you are using internet, you always remember that you are using it just for getting mentored, just for getting coaching or mentoring, so that you can actually sit alone with your books and with your notebook, where you can actually do relentless practice and indefinite repetition. If you are engaging too much into one lecture to another lecture, one channel to another channel, you will be lost, and you will never be able to master that, and then you will never have that problem solving skills which I'm talking about. Okay, so first thing is that you need to limit your screen time. Second thing you have to focus is that you have to delete your Facebook account. You need to delete your Instagram account right away, because you cannot afford to go into this world of distraction where you really spend so many time just looking at what other people are doing, what other people are feeding in their wall, or whatever you call it. So you need to understand that if you want to go into the best colleges, there are lakhs of students fighting for those colleges. So you need to understand that the fighting distraction is also the part of the competition. So it's not only that how much you are intelligent or how much you know subject. It is also that how less you get distracted in this world of internet. So the second aspect is you have to limit your social media account. I would not say limit the social media account, I would say eliminate the social media account. For WhatsApp also, you just have to focus that what schedule you have been given by
you by infinity, or maybe you can ask your parents just to look and let you know the schedule, what your school and what your institution is providing you. You don't have to actually go into the web to the WhatsApp and really check out all those messages which are being sent by your friends, or look at the status messages of your friends and your family relatives. So you really need to stay away from social media, and it's very important. It's not because I have something to do with your social media life. What I'm telling you, that your target, you're trying to go into the best colleges of the country. You want to pursue the best courses from the best colleges of the country. So you need to have the focus, the attention. If you really get into this distractive world, you will be turning out to be loser, right? So you don't want to be a loser, and you don't want to lose your journey for IIT JEE and mains and advanced. And so you need to focus. You need to understand that the internet world needs to be eliminated. Third aspect of social media learning is that when you go and try to learn, let's say we are going to talk about coordinate geometry, and maybe the complexity level will go up, and maybe it would be difficult for you to understand at one go. So what students do, they start searching those topics and try to go into other channels and try to understand from their point of view. But I'm telling you, there are a lot of channels, a lot of content. You cannot verify which content is up to CBSE level, which content is up to JEE mains level, which content is up to JEE advanced level. So if you're finding something difficult, I will tell you, this is very natural. It means you are on a right track. If you find lectures little complicated, lecture little difficult, concepts little complicated, you need to focus on that concepts. You need to read and reread. You have to try, you have to attempt until you succeed. Then that is the process of learning for your IIT JEE mains and advanced. So you need to stay away from social media. You need to limit your screen time, and you don't need to hop from one channel to another channel to understand the concept. To understand the concept, to master the concept, it is totally directly dependent on how much time you're putting in trying to understand the literature of the concept, how much time you're putting to do the practice and repetition of those concepts. If you're not doing it, trust me, you will always find it difficult. Maybe you will be getting into some lectures where they will be talking about very simple ideas, and maybe that would be helpful for your CBSE exams or whatever. But for JEE mains and advanced, the complexity level is really needed on a upper side. Whenever you have any confusion over the concepts, you really need to call your subject mentor and get it done. Get all your concepts and all your misunderstanding be sorted out. But at the same time, don't do it without putting a right amount of energy and input. Then only you try to approach your mentor, because the time you struggle with the concept, that will strengthen your understanding. So that is the idea. Now coming back to the coordinate geometry, as you know, this is lecture number 7. In first 6 lectures, I'll just tell you the recap, because we follow the protocol of this session, is this course, that we need to talk about the basic ideas and big ideas we talked in our previous lectures. So in first 6 lectures, let me give you a quick recap. We talked about we introduced the Cartesian plane, we talked about point, we talked about abscess ordinate, we talked about a distance formula, we talked about section formula, we talked about centroid, we talked about in-center, we talked about Euler line, we talked about slope. Then we talked about locus, we talked about algebraic locus, geometric locus, and parametric locus. We talked about how to convert parametric locus to geometric locus, and from geometric locus to parametric locus. Then we talked about how to go from geometric locus to algebraic locus, and from algebraic locus to geometric locus. We talked about a lot of basic curves, which is very important. You need to remember those curves. After that, we began our straight line with the concept of collinearity, how you're going to check whether 3 points are collinear or not. We talked about 3 approaches. First approach was your distance formula, second approach was your area of triangle formula, and third approach was the concept of slope. With that concept, we understood that for drawing a line or for defining a line, we need 2 properties of a line. First, at least 1 point and lying on that line, and the second, that what angle it makes with a positive x-axis, which means that the angle of the slope or the slope of the line. We need to know that. Using the slope and the point concepts, we develop various form of
equation of straight line. We talked about y is equal to mx plus c. That was the first form. M is the slope and c is 0 comma c. That is the y-intercept. We call it slope and intercept form. The second form was y minus y1 is equal to m into x minus x1. That was when a line is passing through x1 y1 and the slope is m. The third form was y minus y1 upon x minus x1 is equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2. That is 2-point form, where a line passing through two fixed points. And the fourth, we talked about the general form of line, that is x plus by plus c. We also learned the slope is going to be minus a by b, that is the coefficient of x and coefficient of y with a negative sign. After that, in fifth form, we talked about the intercept form. We talked x by a plus y by b is equal to 1, where a and b are x-intercept and y-intercept with their sign. But at the same time, we also talked about the exceptionality, that when a becomes 0, what you need to do. When b becomes 0, what you need to do. When a and b both are 0, what you need to do. Then we talked about the normal form. That was the sixth form. When you have a line, then you can draw a normal from origin to the line. The length is going to be p, and the angle made by the normal with the positive x-axis, which can be anything from 0 to 360 degree. If the normal is lying on the first quadrant, is going to be 0 to 90. If it's lying on the second quadrant, it's going to be 90 to 180. If it's in the third quadrant, it's going to be 180 to 270, and it's in the fourth quadrant, it's going to be 270 to 360. So we talked about the normal form, that was x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where alpha is the angle made by the line segment normal, the normal drop from origin to the normal drawn from origin to the straight line, the angle which I call it alpha, which can lie between 0 to 360. When I talk about the range of alpha, I also talked about if theta is the angle of the slope, the theta for any line, the range goes from 0 to 180 degree. After that, we talked about the last and one of the most important form. We talked about parametric form of straight line. We said x is equal to x1 plus r cos theta, y is equal to y1 plus r sin theta. In this, the parameter was r. We also talked about the sign of r. When you go up the line, you are going to say r is positive. When you go down the line, you're going to say r is negative, no matter the angle is making acute or obtuse. Why? Because when the line is making acute angle, it is very clear that okay, when you go up, the abscissa and ordinate both increases, because the line which is making acute angle is tilted on the right and on the up. So when you go up the line, ordinate increases, abscissa increases, angle is acute, so you say r is positive. When the line is on a obtuse angle slide, because it's slanted on the left side, so naturally when you go up, you see that your ordinate increases but your abscissa goes on the left, which means decreases. Then how come we can take r as positive? That is the question. The answer is, when you go up, you will take r as positive still, because the angle is obtuse. When angle is obtuse, the sign of sine theta is positive and the sign of cos theta is negative. So the angle of slope takes care of that whether the line is tilted on the left or tilted on the right. So whatever the scenario is, you're always going to say that when you go up the line, it is going to be positive. When you go down the line, it is going to be negative. You know the exceptional cases, what happens when the line is totally vertical and what happens when the line is totally horizontal. Okay, now we also talked about how to find the angle between two lines. We formulated the formula that tan theta is mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, where theta is the acute angle and m1 and m2 are the slopes between those two lines of which we are finding the angle. Then we also talked about, using this result, we derived that what should be the condition of two lines to be perpendicular. We said that if L1 is perpendicular to L2, then M1 into M2 is going to be minus 1. It is also true vice versa, that if the product of the slopes of two lines is minus 1, then those two lines are perpendicular. What happens when two lines are parallel? If L1 is parallel to L2, then M1 equals M2, and if M1 equals M2, is the line, these two lines parallel? It may be not, because it could be coincident also. So it is one way but not the other way true, right? On other way, you have to understand that it is being implied but not implied upon. As in the case of perpendicular, it was implied and implied upon. So if you remember, we
finished our classes with question number 43 and 44, you see the similarity between question number 43 and 44. In 43 question, it was a very easy points and the line, it was easy to solve. So when you have to find the distance and 2 points are given, you do a distance formula. When 2 points are not given, when 1 point and slope is given, you apply the parametric form to find the distance. So whenever you need to find the distance, you just focus on the information given in the question. If 2 points are given, you need to apply distance formula. But when a point and the slope is given, you don't need to apply the distance formula. You can go ahead with the parametric form. That will ease your problem solving. Okay, so let's begin the lecture today, and we'll begin the lecture with question number 45, and which is very important question. It is an IIT JEE question which needs to be remembered, because all the results will be coming from this concept which I'm going to talk as question number 45. This is going to be the heart of the concept of straight line, so you need to focus here. So let me just tell you the question number 45. So let me give you an understanding that what this question number 45 is. Now you have this line ax plus by plus c. So there is a line given. The equation of this line is ax plus by plus c is equal to 0. This is a general equation of the line. Now you have this point x1, y1. It is not given whether it is on the left side of the line or right side of the line. It doesn't matter, because we'll be talking about that. And we call this point as A, and then this line is going and intersecting this line at point B, and this line is making positive x-axis ke saath, this is making angle alpha. So what you can say that the slope of A and B is given as alpha, and you don't need to just find the distance. Here they want you to find the distance with a sign. Distance with a sign. You have to find AB sine distance, which means you don't have to find the mod. You just have to find the distance with a sign. So if it is like going up or it is going down, we don't know. It's just that we need to know that we don't know whether A is lying on this side or this side, whether I don't know whether the B point is below the point A or above the point A. We need to find that. That is why we say we need to find AB with sign. This is the first question, right? You have to find R. Basically you don't know whether you're going up or going down. Matlab you could go down as well to find B. Matlab it doesn't matter that A yahan pe hai ya A yahan pe bhi ho sakta hai. It is not given in the question ki A kahan pe hai. This is what you have to tell. Then you have to find the sine distance AB. The second thing you have to find is that minimum value of AB sine when alpha is variable. When alpha is variable, which means you don't know the slope. Basically this, because A is fixed line, B alpha could be anything, so that you have to find the minimum distance of two questions. This question packs. This is an IIT JEE question which needs to be remembered, and this is a very easy question, I would say, but this question is also the heart of straight line chapter. If you master this question, you can master the whole straight line. So let me talk again about this problem. Now you have this line ax plus by plus c. You don't know whether A is here or here. You just know that B is lying on that line, and AB line segment, if extended, is making alpha with positive x-axis. So you have to find the sine distance AB, and then you have to find the minimum value of AB sine when alpha is variable. So all the things are in a standard form, so you don't need to worry about numbers and calculations. What you need to worry about is the concepts. So let me solve this question for you. So I'm sure many of you must have understood that, okay, I don't know whether I'm going up or down. I'll just assume this way. So A is going to be x1, y1, depending on the sign of R. If R is positive, B is upward. If R is negative, so I can call the as x1 R cos alpha,
and y1 plus r sine alpha. How can I say? Because this is making angle alpha with positive x-axis. If r is positive, it means b is above a, and if r is negative, it means b is below a. So here the idea is just to find the r. Okay, so the coordinate of b becomes x1 plus r cos alpha and y1 plus r sine alpha, right? And b is lying on the line ax plus by plus c is equal to 0. So if I talk about the line, this is the line on which b is lying, right? And the equation is ax plus by plus c is equal to 0. So which means this point satisfies this equation. What you can say, that point B satisfies the equation ax plus by plus c. So what we can do, we can just place b on this equation to satisfy. So x के बदले में क्या डालूंगा, x1 plus r cos alpha, y1 plus r sine alpha plus c equals 0. Now since I have to find r, which is going to be AB sine is nothing but r, we need to find r. So if I see, this is going to be ax1 plus by1 plus c here, and with r you are going to say a cos alpha plus b sine alpha is equal to 0. So what you can say, r is going to be minus ax1 plus by1 plus c upon a cos alpha plus b sine alpha. This is the result you need to remember always. So whenever you have to find the distance with a sine from a fixed point x1, y1, where the point is lying on a particular line b, and that line is making some angle with positive x-axis, AB is making some positive axis, though this is the expression you need to remember, that r is going to be minus of ax1 plus by1 plus c upon a cos alpha plus b sin alpha. Which I mean, let's say, if this is, let's say, 3x plus 4y plus 5 is equal to 0, and let's say this point is 1, 2, and you have to find, let's say, this distance r, which is making some angle, let's say theta. So when you have to find AB sine, or you have to find r, you just need to place 1 by 2 in this equation with a minus 3 into 1 plus 4 into 2 plus 5 upon, you are going to write a will be here, so 3 cos theta, 4 will be here, plus 4 sine theta. This is going to be your distance with a sine. Always remember that. This result needs to be remembered. So r is minus of ax1 plus by1 plus c upon a cos alpha plus b sine alpha. You don't have to forget this, okay? Now the second part of the question was, you have to find r minimum. You have to find r minimum when alpha is something like variable. So if you take this fixed line as ax plus by plus c, and if you take this point A as x1, y1, tell me if this is b and this is b dash, tell me which would be the shortest distance. Definitely the perpendicular drop from A on B, right? This is what you can say, that okay, when you make a perpendicular, this is going to be the shortest distance. So you can say this is r minimum. And if you look into the expression, r is minus ax1 plus by1 plus c upon a cos alpha plus b sin alpha. If you focus in this expression, if you focus on this expression, you will focus that this is a constant thing. You cannot change x1, y1. That's a fixed point. ABC is also fixed. What is variable here is alpha. So you need to multiply to eliminate alpha to find the maximum value. Not eliminate. You have to find the minimum value of this whole expression, which means यहाँ पे ये denominator है. अगर किसी numerator में
फिक्स्ड अपॉन वेरिएबल है, फिक्स्ड अपॉन वेरिएबल है। अगर मुझे इस न्यूमरेटर को मिनिमाइज करना है तो मुझे डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज। डिनोमिनेटर को मुझे क्या करना होगा, मैक्सिमाइज। तो याद करो a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा अपने ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास से कि इसका रेंज क्या होता है। इफ यू रिमेंबर, इसका रेंज होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इफ यू रिमेंबर, कोफिशिएंट को स्क्वायर कर देते हैं। ये कैसे आया था आपको याद होगा, आई एम श्योर। अगर भूल गए हैं तो यू नीड टू गो बैक एंड रिमेंबर दैट। तो अगर मैं कहूं r इज माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, तो क्या करना होगा, मुझे डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना होगा। डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करूंगा तो क्या होगा, फ्रैक्शन मिनिमाइज होगा। तो व्हाट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ a cos alpha plus b sin alpha? And you know it, this is going to be under root a square plus b square. So our minimum is going to be minus ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. So always remember, this is the formula. So two formula which you need to remember: r is going to be minus ax1 plus by1 plus c upon a cos alpha प्लस बी साइन अल्फा। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और आर मिनिमम, अगर इसको पहले मैं उस पर दिखा दूं, ये आपको याद होगा। अगर ये लाइन है, अगर ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ये एक्स वन वाई वन है, और ये लाइन है आपका ए बी, तो ये जो आर है विथ अ साइन, अगर ये अल्फा है तो आर क्या होगा, ये अगर ये ओवरऑल नेगेटिव होता है, अगर ये आर नेगेटिव होता है, इसका मतलब बी कहाँ है, बी ए के नीचे है, बी ए के नीचे है, तो प्रोबेबली ए विल लाई समवेयर हियर। और अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब जो हमारा डिपिक्शन है डायग्राम में वो बिल्कुल सही है, राइट। इसको मिनिमाइज करोगे आर मिनिमम तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट है, ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये अगर पॉइंट है एक्स वन वाई वन, तो अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो r विथ अ साइन क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी दिस। और आपको सिंपली अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप इसको मॉड लगा दोगे। तो अगर मॉड r निकालना है तो यू विल जस्ट से मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये फॉर्मूला आपको रटाया जाता है। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है कहाँ से, साइन डिस्टेंस से। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज टू रिजल्ट। तो अगर कोई पॉइंट x1 y1 है, अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी है, आपको एंगल अल्फा पे उसका डिस्टेंस निकालना है, तो आप कहोगे माइनस ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा। ये माइनस जरूरी है क्योंकि दैट डिपिक्ट्स द साइन डिस्टेंस। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई पॉइंट x1 y1 है और आपको डिस्टेंस निकालना है विद अ साइन, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है विद अ साइन, तो यू आर गोइंग टू से माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर आपसे सिर्फ डिस्टेंस पूछा गया है पॉइंट फ्रॉम अ लाइन से, तो आपको होगे मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, थिंग्स टू रिमेंबर। बार बार रिपीट कर रहा हूं so that you understand the value. R is going to be minus of ax1 plus by1 plus c upon a cos alpha plus b sin alpha। अल्फा क्या है याद रखिएगा, अल्फा जो गिवन लाइन है उसका स्लोप नहीं है, जो पॉइंट, दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है उसका स्लोप है। और ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है वो गिवन लाइन है, और x1 y1 जो गिवन पॉइंट्स है उसका है, ठीक है। दूसरा है r मिनिमम, जो होगा वो क्या होगा, माइनस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपको किसी पॉइंट का सीधे डिस्टेंस निकालना है, ये अगर पॉइंट है x1 y1 और ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो आपको अगर सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, आपको साइन से कोई मतलब नहीं है, तो सेम फॉर्मूला यूज होगा r मिनिमम वाला, लेकिन मॉड लग जाएगा ax1
प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए मैंने मॉड क्यों लगाया है? क्योंकि डिस्टेंस में साइन की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है, लेकिन आर में साइन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम with respect to a fixed point निकालना है, we need to understand whether we are going up or going down so that we know on Cartesian plane where exactly we are heading. So this is very important. So let's do next problem. Let's call this question number 46. The question number 46 is find the perpendicular distance, means the shortest distance from origin to 3x plus 4y plus 7 is equal to 0. आपको इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो कि लेट्स से दिस इज दिस लाइन। क्या लाइन कह रहे हो आप इसे? 3x plus 4y plus 7 और इज इक्वल टू 0, और कोई फिक्स पॉइंट है ओरिजिन, मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। दो मैंने क्या कहते हैं कि उस तरीके से बनाया, लाइन का ट्रू डिपिक्शन नहीं है। आप कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करोगे तो ये लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, लेकिन अभी आपको बस समझना है कि मैं फॉर्मूला कैसे आपको बता रहा हूँ। तो ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना है ओरिजिन से, तो ही जस्ट वांट टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दे डोंट वांट यू टू फाइंड द साइन। तो आप क्या करोगे? आप मॉड लगा दोगे 3 इंटू एक्स के बदले डालोगे 0 0, 4 के बदले डालोगे 0 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या किया आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया कि अगर कोई लाइन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी और ये अगर पॉइंट है x1 y1, तो आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे? मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल वही किया हमने। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा 7/5। सो दिस इज द आंसर। अगर इसको आप थोड़ा सा ग्राफ पे भी बना के देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। अगर मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ, आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या है? 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है अगर मैं x पे देखूँ तो ये बनेगा -7/3। x इंटरसेप्ट इसका -7/3 है, लेट्स कॉल दिस एज -7/3, और इसका जो y है दैट इज -7/4, लेट्स कॉल दिस एज -7/4। सो द लाइन वुड बी, अगर मैं रेड से ड्रॉ करूँ, लाइन वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका लाइन होगा कुछ ऐसा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द प्रोपोर्शन, आपके पास कुछ ऐसा लाइन होगा और आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है ये वाला, दिस इज ओरिजिन और आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ये अगर बी कोई भी पॉइंट ले लो, पी पॉइंट ले लो, तो ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। बेसिकली ये नॉर्मल फॉर्म से भी आप कर सकते थे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस विल हेल्प यू आउट, राइट। आपको इसका रूट पता है कि ये कैसे यूज हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि दो लाइंस आपको दे रखे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो लाइंस दे रखे हैं, यू हैव टू प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज mod c1 minus c2 upon under root a square plus b square। Now this is the question। आपको अगर गौर से देखोगे तो आपको ये दो लाइन अगर आप देखोगे, अगर आप इस लाइन को देखोगे और इस लाइन को देखोगे, आप देखोगे कोफिशिएंट ऑफ x सेम है, कोफिशिएंट ऑफ y सेम है। इससे आपको क्या पता चलता है? कांस्टेंट अलग है। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि दोनों का स्लोप सेम है बट कांस्टेंट अलग है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ax plus by plus c1 is equal to 0 is parallel to ax plus by plus c2 is equal to 0 since c1 and c2 are two distinct numbers। तो आप अगर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो आप कह सकते हो ऐसा कुछ दो लाइन है, राइट।
आपके पास दो लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई plus C2 is equal to 0. And now what you need to do is you have to prove that this perpendicular distance, this distance is mod C1 minus C2 upon under root A square plus B square. So he's not worried about the sign, he's more worried about just the distance. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था IIT JEE क्वेश्चन विच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, उसी से जाएंगे और हम ये नया डेरिवेशन निकाल देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ये इक्वेशन दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो और ये दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, मैं इस पॉइंट को ए मान लूंगा, जिसे थोड़ी देर के लिए मैं x1 y1 कहूँगा, एज्यूम कर लूंगा, और मैं यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह दूंगा r। ठीक है, मुझे ये मतलब r मिनिमम निकालना है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सीधे फॉर्मूला लगा दूंगा ए बी विथ अ साइन। अभी साइन ले रहे हैं, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, इसको कह सकते हैं आर मीन। क्या होगा फॉर्मूला, माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों लिया ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, क्यों नहीं लिया, क्योंकि आर मिनिमम ले रहे हैं, है ना। तो हमें आर मिनिमम पता चल गया कि माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये बता दिया कि डी सर होगा, अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात करूं तो मॉड ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में x1 प्लस x1 कॉमा y1 नहीं दिया है, राइट। तो ये आपकी इमेजिनेशन है। तो अब ये देखो कि x1 y1 किस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, x1 y1 आपने एज्यूम किया था लाइज ऑन ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। लाइन 2 पे लाई कर रहा था, इस पे लाई कर रहा था, तो आपने ये कहा कि ये x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, तो आप पुट कर दो तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। सो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो मैं ये कह सकता हूं कि ax1 प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू माइनस सी टू। आई कैन राइट दिस एज, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो d क्या हो जाएगा, माइनस सी टू प्लस सी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So you just prove that the distance between two parallel lines is mod C1 minus C2 upon under root A square plus B square. So you have just proved it. तो आप इसको आप फॉर्मूला की तरह देख लो कि अगर दो पैरेलल लाइन है, जो आपको याद रखना है, अगर इन दोनों के बीच में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, सो अगर ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, और दोनों के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो d इज गोइंग टू बी मॉड सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे भी याद करना होगा। तो अब तक हमने क्या क्या सीख लिया, साइन डिस्टेंस विद अ साइन निकालना सीख लिया, दैट इज r इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, उसका मिनिमम डिस्टेंस निकालना सीख लिया, माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीख लिया, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी निकालना सीख लिया। नाउ लेट्स गो टू अनदर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 48. Two lines are given, one is 3x plus 4y is equal to 5 and the other line is 3x plus 4y is equal to 10. आपको दो लाइन दे रखा है, लाइन 1 और लाइन 2। डेफिनेटली आपने देख के पहचान लिया होगा कि दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y एग्जैक्टली दोनों का सेम है। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, L1 एंड L2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है इंटरसेप्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ
इंटरसेप्ट कट बाय ट्रांसवर्स। आपको जैसा कि पता है पैरेलल लाइन को जो भी लाइन कट करता है उसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं। और कौन सा लाइन ट्रांसवर्स है? √3x + y = 2 बिटवीन देम। तो आपको इस सवाल में दो चीजें निकालनी हैं जो मैं पिक्टोरियली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो अगर एक बार आप पिक्टोरियली समझ लो। अगर ये दो लाइन है आपका, राइट, दो पैरेलल लाइन है, तो एक सवाल तो आपसे पूछा गया है सिंपल सी कि भैया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहला सवाल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ये आपने किया था लास्ट प्रॉब्लम में, तो ये आपके लिए इजी प्रॉब्लम है। दूसरा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, आपसे पूछा गया है ये जो लेंथ है, ये अगर कोई लाइन दे रखा है √3x + y = 2, this blue line is your transverse and they want you to find this length L, the length of the transverse। ठीक है, तो आई एम श्योर आप देख के घबराए नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है क्या, जो IIT JEE सवाल था जो आपको याद रखना था, R -(ax1 + by1 + c)। तो सबसे पहला झटपट कर देते हैं, फर्स्ट d mod c1 - c2 upon √a² + b²। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पहला पैरेलल लाइन क्या है? 3x + 4y - 5 = 0। 5 को मैंने इधर ले लिया, दिस इज L1। और दूसरा है 3x + 4y - 10 = 0, दिस इज L2। और मुझे दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। a मेरा क्या हो गया? a मेरा 3 है। b मेरा क्या हो गया? b मेरा 4 है। c1 मेरा क्या है? -5। c2 मेरा क्या है? -10। तो d क्या हो जाएगा? mod of -5 - -10 अपॉन √3² + 4²। अब बड़े आराम से देख रहे हो, ये हो जाएगा 5/5, दैट इज 1। तो दो लाइन के बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट आया, 1 यूनिट की दूरी है, दोनों पैरेलल लाइन 1 यूनिट अवे है एक दूसरे से। नाउ द सेकंड थिंग व्हिच यू नीड टू फोकस इज दैट यू नीड टू फाइंड द सेकंड थिंग, जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को यूज करना है। ये दो लाइन दे रखा है, लेट मी राइट दोस टू लाइंस। One is 3x + 4y - 5 = 0 and the other is 3x + 4y -10 = 0। और आपका जो ट्रांसवर्स है वो कुछ ऐसा लाइन है। इसका इक्वेशन क्या दे रखा है? आराम से सांस लेके सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। √3x + 4y = 10, सॉरी = 2। ये आपका ट्रांसवर्स का इक्वेशन है। तो आप बस इतना फोकस करो कि आपको ये L निकालना है। तो मैं इसको कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं इसको मैं कह सकता हूं x1 y1, राइट। तो इस पॉइंट को मैं क्या कह सकता हूं? x1 + L cos थीटा, y1 + L sin थीटा। बताइए कहां से आया ये मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म लगा दिया। किस लाइन के लिए? इस ग्रीन लाइन के लिए। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ स्लोप मेड बाय ग्रीन लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस, मींस द ट्रांसवर्स। आप अगर स्लोप ऑफ दिस लाइन देखोगे, इफ यू फोकस ऑन द स्लोप ऑफ दिस लाइन, सॉरी √3x + y है, नॉट √3x + y है, राइट। हाँ, तो अगर आपको इस लाइन का ट्रांसवर्स का अगर मैं स्लोप बताऊं, तो आपको पता है -a/b होता है। अगर जनरल फॉर्म में आप देखोगे तो x का कोफिशिएंट √3 है और y का कोफिशिएंट 1 है। सो tan थीटा इज गोइंग टू बी -√3/1, विच इज -√3। आप ये ध्यान में समझ में आ गया होगा कि थीटा क्या है? एक ऑब्ट्यूज एंगल है। थीटा क्या है? एक ऑब्ट्यूज एंगल। कितना वैल्यू है उसका? इसकी वैल्यू है 120 डिग्री, है ना। तो अगर tan थीटा -√3 है तो डेफिनेटली sin थीटा क्या होगा? आई एम श्योर आपको पता है। अगर आप ट्राइंगल देख लोगे तो tan थीटा अगर √3 है तो ये √3 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो यू कैन से sin थीटा इज √3/2। और cos थीटा बताइए क्या होगा? -½ बताइए cos थीटा माइनस क्यों होगा? क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज है। थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज। tan थीटा नेगेटिव है तो थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज। तो थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो sin थीटा पॉजिटिव होगा और cos थीटा नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो कि cos थीटा की वैल्यू क्या है? -½ और sin थीटा की वैल्यू क्या है? √3/2। तो मैं ये जो आपका ये A पॉइंट एज्यूम क्यों B पॉइंट, तो B पॉइंट मैं लिख सकता हूँ B है आपका x1 + L cos थीटा, y1 +
L साइन थीटा। तो मैं x1 जो मैंने एज्यूम किया अब इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। L जो हमें निकालना है cos थीटा इज -½ एंड y1 प्लस L इंटू √3/2। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। अब आपको पता है ये उसको सेटिस्फाई करेगा तो आप उसमें डाल दो। B पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, B लाइज ऑन this line 3x plus 4y minus 5, 3x plus 4y minus 5 is equal to 0। तो आप इसमें पुट कर दीजिए। so 3 into x1 minus L by 2 plus 4 into y1 plus √3/2L minus 5 is equal to 0। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम कहानी हो जाएगी। आप सिंपल सी बात है, आप यहां से कर सकते हो कि -3L/2 प्लस 4 इंटू √3/2L इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x1 प्लस 4y1 -5। आपको याद हो बिल्कुल वही रिजल्ट आया है कि आप ये जानते हो L क्या होगा। L होगा माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा। तो आप सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते थे। तो आपको क्या पता चला, L इज माइनस ऑफ लाइन क्या है, लाइन 3x प्लस 4y है। सो 3x1 प्लस 4y1 माइनस 5 अपॉन a cos अल्फा क्या है, a क्या है, a आपका 3 है, cos अल्फा क्या है -½ प्लस y क्या है, b क्या है 4 और साइन थीटा क्या है √3/2। तो देखिए क्या आया, माइनस ऑफ 3x1 प्लस 4y1 माइनस 5 अपॉन -3/2 प्लस 2√3, है ना। अभी हमने ये निकालना सीखा, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपको पता है x1 y1 किस पे लाई कर रहा है, x1 y1 इस पे लाई कर रहा है 3x प्लस 4y माइनस 10 पे। तो आप क्या कह सकते हो, x1 y1 लाइज ऑन 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैं पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3x1 प्लस 4y1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो 3x1 प्लस 4y1 क्या हो गया 10, इसकी वैल्यू क्या हो गई 10। तो मैं यहाँ पे फीड इन कर दूंगा तो L क्या बन जाएगा, L बन जाएगा माइनस ऑफ 10 माइनस 5 अपॉन -3/2 प्लस 2√3। तो L को अगर आप सीधे कर दोगे तो मॉड ऑफ 5 अपॉन 2√3 माइनस 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट आप कर लेना, बट मेरा जो आइडिया है बताने का वो ये कि आपसे जब भी दो पैरेलल लाइन का ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो आप सीधे कह सकते हो मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b²। लेकिन अगर आपसे लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स पूछा जाए तो आपको बार बार इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप सीधे बोलोगे दिस L इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2, मॉड ऑफ यहां से c1 माइनस c2 का जो देखिए क्या आया है, यहाँ पे देखिए सेम आया है, अपॉन इंस्टेड ऑफ दिस यू विल से a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा, जिसमें a b तो आपने यहां से उठाया, अल्फा कहां से उठाएंगे, अल्फा आप यहां से उठाएंगे, मतलब एंगल ऑफ अल्फा इज एंगल ऑफ स्लोप ऑफ ट्रांसवर्स। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा। तो जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा r इज माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा। ये जो रिजल्ट है दिस इज द हार्ट ऑफ द रिजल्ट इफ यू रिमेंबर। अभी देखो जब झटपट आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज द हार्ट ऑफ द रिजल्ट। इसी से हमने आर मिनिमम निकाला विच इज
माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से हमने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन निकालना सीखा, विच इज डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी आइडिया से हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना सीखा, विच इज मॉड ऑफ C1 माइनस C2। दिस इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस क्या है, ax प्लस b1, टू लाइन क्या है ax प्लस by प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज करके हमने क्या निकालना सीखा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या आया, दो पैरेलल लाइन का इंटरसेप्ट निकालना है, तो मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल ऑफ स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट। तो आपको ये आइडिया ध्यान में रखना है कि ये जो हार्ट ऑफ द आइडिया है, इट हैज गिवन अस सो मेनी रिजल्ट्स। और अभी इसका ये 20% भी नहीं है, अभी बहुत सारी पूरी जो थ्योरी स्ट्रेट लाइन की इमर्ज होगी इसी थ्योरी से इमर्ज होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज द कोर, इसको पकड़ के रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इफ लाइन L1 टचेस x माइनस वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वन का स्क्वायर इक्वल्स 4। मतलब एक लाइन है, इस कर्व को टच कर रहा है, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे ये कौन सा कर्व है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 1,1 और रेडियस क्या है 2। अगर आपको याद हो, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। इफ लाइन 1 टचेस x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। टचेस का मतलब क्या है, दिस लाइन 1 इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एंड L1 is parallel to a line L2। और L2 का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ L2 is 3x plus 4y minus 14 is equal to 0। So you have to find first part इक्वेशन ऑफ L1। सबसे पहला पार्ट क्या है, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ L1। दूसरा पार्ट है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टचेज L1। एक और सर्कल है जो L1 को टच कर रहा है, जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देन यू हैव टू फाइंड आर, तो यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। थर्ड पार्ट है अ सर्कल touches both L1 and L2। find the area, find its area। वो जो सर्कल है उसका एरिया आपको निकालना है। तो देखिए, ये 3 पावरफुल क्वेश्चन है, एक बहुत पावरफुल आइडिया है इसमें। देखा क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि L1 there is this line L1 which touches a circle x minus 1 का whole square plus y minus 1 का whole square equals 4 and this line is parallel to another line which is 3x plus 4y minus 14 is equal to 0। you have to find the equation of line 1, then you have to find। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो सर्कल, ये जो इक्वेशन था, ये जो आपका इक्वेशन था x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये आपको कैसे पता चला सर्कल है। इफ यू रिमेंबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज अ सर्कल विथ सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस 2, राइट। अगर आपको याद हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स आप ओरिजिन से कितने डिस्टेंस दूरी पे है, 2। तो वो सारे पॉइंट जो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस की दूरी पे, तो बेसिकली इट्स अ सर्कल। और इसी सर्कल को अगर x को रिप्लेस कर दिया जाए x माइनस 1 से, तो मतलब आपका सर्कल 1 यूनिट राइट चला गया है, और y को रिप्लेस कर दिया जाए y माइनस 1 से, तो ये सर्कल 1 यूनिट ऊपर चला गया है। तो अगर आप देखो, ये आपका सर्कल है, लेट्स कॉल दिस सर्कल, है ना, ये रेड सर्कल है।
अब मैं इसका, ये सर्कल क्या है, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, रेडियस क्या है 2, ठीक है। अब मैं इस सर्कल की कॉपी ले रहा हूं, कॉपी, और इसको 1 यूनिट राइट ले गया, 1 यूनिट राइट है ना, और 1 यूनिट अप, 1 यूनिट राइट और 1 यूनिट अप। इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको पिंक कर दिया, पिंक से अच्छा है, इसको ब्लू कर दिया, ठीक है। तो मैंने सेम सर्कल को 1 यूनिट राइट और 1 यूनिट अप ले गया। तो आप बताओ कि अगर ये सेंटर 1 यूनिट राइट गया है और 1 यूनिट अप गया है तो सेंटर क्या हो गया, 1,1। दिस, ये पॉइंट हैज मूव्ड 1 यूनिट राइट एंड 1 यूनिट अप, तो क्या हो गया सेंटर 1,1। और इसकी रेडियस क्या है, रेडियस में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि सर्कल को मैंने एज इट इज रखा। तो ये सर्कल x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज बेसिकली अ सर्कल विथ सेंटर 1,1 and radius 2. I hope now you understand that why I called this curve as circle. Now you know that L1 is parallel to L2 and L2 का equation क्या दे रखा है, 3x plus 4y minus 14 is equal to 0. We don't have to worry about this constant, we just have to see that the slope of this line is minus 3/4. है कि नहीं, coefficient of x upon coefficient of y, so 3/4 minus के साइन, तो स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, m ऑफ L1 क्या होगा, डेफिनेटली माइनस 3/4 क्योंकि L1 इज पैरेलल टू L2। तो डेफिनेटली हमें पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा में कोइंसिडेंट वाला भी केस आ जाता है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इसी बात पे फोकस करना है। अब आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या दे रखा है 1,1 और रेडियस क्या दे रखा है 2, है ना। अब आपके पास एक लाइन है जिसका स्लोप आपको पता चल गया है, दिस इज द लाइन, लेट्स से आपको इसका स्लोप पता चल चुका है L1, तो आपको इसका स्लोप पता चल चुका है, तो ये लाइन क्या होगा 3x प्लस 4y प्लस k, क्योंकि आपको पता नहीं कांस्टेंट क्या है, तो ये k आपको निकाल दोगे तो आपका लाइन आ जाएगा, क्योंकि स्लोप आपको पता चल चुका है माइनस 3/4, तो आपको पता है कि इससे पैरेलल है, तो आपने लिख दिया इस लाइन को 3x प्लस 4y प्लस k। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल चुका है कि L1 इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो एक दो अप्रोच करेंगे, मेथड 1 पहले मैं बता देता हूं आपको, मेथड 1, फिर उसके बाद मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। मेथड 1 देखिए, जो कॉमन सेंस कह रहा है, जो आपको ज्योमेट्री का नॉलेज है कि ये और ये डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, विच इज इक्वल टू 2। तो मैं अगर डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दूं 1,1 पे इस लाइन के लिए, तो मैं जानता हूं कि ऐसे दो लाइन होंगे जो सेम स्लोप के होंगे और टेंजेंट बना रहे होंगे, तो ये दोनों लाइन L1 हो सकता है, राइट। तो इसलिए आप देखोगे k की वैल्यू 2 आएगी, k की वैल्यू आपकी 2 आएगी, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो 1 इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। लाइन क्या है, लाइन 1 क्या दे रखा है 3x प्लस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0, जो कि आपको निकालना है k की वैल्यू। और पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट है 1,1 और डिस्टेंस इज बेसिकली द रेडियस दैट इज 2। तो इस इक्वेशन में लिख दूं पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, आई एम श्योर। सो d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको आई एम श्योर पता है। तो मैं डिस्टेंस निकाल देता हूं, d के बदले डाल दिया 2 मॉड a is 3, x1 के बदले डाल दिया 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस k मॉड अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो देखिए क्या आया, 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7 प्लस k प्लस 7 अपॉन 5, नीचे क्या आया मॉड 5। तो आप कह सकते हो मॉड k प्लस 7 इज 10। सो मॉड k प्लस 7 क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो k प्लस 7 क्या क्या हो सकता है, 10 हो सकता है और -10 भी हो सकता है। तो k क्या होगा 3 और k क्या होगा -17। तो आप कह सकते हो जो आपका सर्कल है 1 जिसका सेंटर क्या दे रखा है 1,1 इस
chop between two lines whose slope is -3/4. ये दोनों लाइन L1 हो सकता है, ये दोनों लाइन L1 हो सकता है क्योंकि L1 का सिर्फ आपको स्लोप दिया गया है। तो क्या होगा ये आंसर इसका? आप कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी 3x प्लस 4y। k की वैल्यू क्या आई है 3, और दूसरी क्या होगी 3x प्लस 4y, ये क्या है -17। सो दिस एक्सप्लेन योर, आप इसको और तरीके से देख सकते हो, व्हाट गोइंग टू बी द डिस्टेंस, डेफिनेटली द डायमीटर इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस। आप चेक कर लो कैसे निकालोगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, मॉड 3 माइनस -17 अपॉन √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखिए क्या आएगा 20/5 दैट इज 4। रेडियस क्या था इसका 2, तो डायमीटर क्या होगा 4, राइट। तो आप ऐसे भी आंसर चेक कर सकते हो कि ये दोनों लाइन ट्रू है। सो लाइन 1 कुड बी 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y -17। मेथड 2 मैं बताऊंगा कि मेथड 2 बिना डिस्टेंस के भी आप कैसे कर सकते थे। आपको पता है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये थोड़ा आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में का मैं तरीका बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला आप इसका इस कर्व का इक्वेशन आपको दे रखा था x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। आपको इसमें तो क्लियर पता चल चुका था कि ये सर्कल है। ये मेथड अप्लाई तब होता है जब आपको क्लियरली ना पता हो कि कर्व क्या है। इट कुड बी सर्कल, इट कुड बी एनी कर्व, और उसका क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखा है जो टेंजेंट है। क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन 3x प्लस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0। सो कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि इस लाइन और इस सर्कल, इस लाइन और इस सर्कल के बीच का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सिर्फ एक है क्योंकि ये टेंजेंट बना रहा है। तो अगर मैं y अगर इसको लिखूं तो y बेसिकली क्या होगा, इसको मैं रीअरेंज करूं तो y हो जाएगा -3/4x माइनस k। इसको मैं यहां पे रिप्लेस कर दूं x-1 का होल स्क्वायर प्लस -3/4x माइनस k -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ quadratic equation. Now what you want that this line and this should have only one solution. It should have only one solution, that is one point of intersection. तो आप क्या कर सकते हो, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर सकते हो, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम इसको सीखेंगे जब हम हायर कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ेंगे। तो अभी आप मेथड 1 पे स्टिक करो। मेथड 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसकी हम आगे बात करेंगे, जो कि आपको आगे मास्टरी करना होगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं उनको पता है कि ये लाइन और इस सर्कल के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओनली वन है, विच मीन्स इन दोनों के बीच में जो सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ एक आएगा। तो किसी भी कर्व और लाइन के बीच में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी लाइन के साथ सिर्फ वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट 0 करके भी k की वैल्यू निकाल सकता था, जिससे 2 की k की वैल्यू आ जाती। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मेथड 2 राइट नाउ, जस्ट ट्राई टू ग्रास्प द मेथड 1। मेथड 2 को आप दिमाग में रखना, विल यूज इट इन द अदर कॉन्सेप्ट जब हम सर्कल पढ़ेंगे। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अनदर सर्कल है। अगर आप इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, रेडियस क्या है आर। यहाँ पे देखिए एक्स एज इट इज है तो एब्सिस अभी भी 0 है, रेडियस ऊपर चला गया, दैट एब्सिस ऑर्डिनेट ऊपर चला गया, दैट इज 0,3। ये क्या है 0,3, रेडियस अभी भी आर है। तो दिस इज द सर्कल विथ सेंटर 0,3 एंड रेडियस आर, जो कि आपको निकालना है। नाउ दिस लाइन L1 कोई भी एक ले लीजिए आप, 3x प्लस 4y प्लस 3 भी ले सकते हैं, -17 भी ले सकते हैं ना, कोई भी एक ले सकते हैं, और -17, ठीक है। इन दोनों लाइन में से कोई भी आप लाइन 1 कंसिडर करो तो दैट इज टचिंग। तो क्या होगा इसका आंसर, मतलब अगर आपको अगर मैं बताऊं कि आपका जो सर्कल है वो ये, आपका जो सर्कल है वो ये,
ठीक है, जिसका इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर आप कह सकते हैं 0,3 है, और लाइन आपको दे रखा है L1, इस बार आपको पता चल चुका है L1 इज 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -17 भी ले सकते हैं क्योंकि उसके लिए दूसरा आंसर आएगा, इसके लिए दूसरा आंसर आएगा, राइट। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट राइट नाउ, यू जस्ट हैव टू वरी कि भैया r क्या है। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकाल दूं तो मेरा r आ जाएगा, इसका डिस्टेंस निकाल दो तो r आ जाएगा। तो दो पॉसिबल वैल्यूज होगा, या तो L1 के साथ है या तो दूसरे वाले L1 के साथ है। तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, 0,3, इससे डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी योर रेडियस, दैट इज 15/5। तो एक आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेडियस इज 3 यूनिट। क्या हो जाएगा, रेडियस इज 3 यूनिट। इफ यू कंसिडर द लाइन L1 एज दिस, दूसरा क्या इक्वेशन है आपका, 3x प्लस 4y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इफ यू कंसिडर दिस एज योर लाइन 1, क्योंकि दोनों लाइन 1 पॉसिबल है, और ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर आपको दिया है 0,3 और आपको रेडियस निकालना है सिंस इट इज जस्ट टचिंग इट। So the second answer would be 3 into 0 plus 3 into 4, क्योंकि y के बदले 3 डाल दीजिएगा, माइनस 17 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो देखिए क्या आ रहा है, 12 माइनस 17 इज माइनस 5, 12 माइनस 17 इज माइनस 5 विच इज 5 अपॉन 5, सो 1 यूनिट। तो अगर इस इक्वेशन में रेडियस, देखिए दो आंसर आएगा, अगर रेडियस 3 डालोगे तो 3x प्लस 4y प्लस 3 है ना, 3x प्लस 4y प्लस 3 आपका टेंजेंट बनेगा। अगर रेडियस 1 डालोगे तो 3x प्लस 4y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 आपका टेंजेंट बनेगा, क्योंकि दोनों लाइन आपके लाइन 1 दो आंसर्स होंगे तो रेडियस भी दो आंसर आएगा। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या था, अ सर्कल टचेस बोथ L1 एंड L2। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अब L1 आपके पास क्या है, तो आपको दो आंसर्स आएंगे। एक L1 आपका, एक L1 क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। L2 ऑलरेडी क्या दे रखा है, 3x प्लस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों के बीच का के सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, जैसे आपका लाइन 1 ये है, लाइन 2 ये है, और मैं इन दोनों के बीच में सर्कल ड्रॉ कर दूं, सॉरी, अगर ये सर्कल है आपका जो दोनों लाइन के बीच में चॉप्ड है ना, तो आप कह सकते हो दिस इज 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 3x प्लस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली इसका जो डायमीटर होगा, डिस्टेंस यही हो जाएगा। तो अगर डायमीटर में निकाल दो इस सर्कल का तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 14 अपॉन 5 विच इज 17/5। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 17/10। 17/10 इंटू 17/10 आप कह सकते हो दिस इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल। लेकिन इसका एक और आंसर होगा, क्योंकि अगर आप लाइन 1 लेते हो 3x प्लस 4y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 एंड लाइन 2 इज 3x प्लस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हो डिस्टेंस वुड बी द डायमीटर। तो आप कह सकते हो मॉड ऑफ माइनस 17 माइनस माइनस 14 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मेक्स इट 3/5। सो डायमीटर ये हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 3/10। तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू 3/10 इंटू 3/10। सो बोथ आर द करेक्ट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे होगे, आप अगर क्वेश्चन पे फोकस करो तो इक्वेशन ऑफ L1 दो आंसर आएगा, आपको पता है क्यों। रेडियस, अगर ये इक्वेशन ए आया, इक्वेशन बी आया, अगर L1 को आप इक्वेशन ए लोगे तो एक रेडियस आएगा, R1 आएगा,
और L1 को अगर आप B लोगे तो R2 आएगा। तो यहाँ पे भी दो आंसर, यहाँ पे भी दो आंसर, यहाँ पे भी दो आंसर। उसके बाद L1 अगर A होगा तो आपका आंसर, L1 अगर A लोगे तो पहला आंसर आएगा डेल्टा 1, और L1 को अगर B लोगे तो दूसरा आंसर आएगा डेल्टा 2। तो आप देख रहे हो कि हर ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंट किस क्वेश्चन में मोर देन वन आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द 50th प्रॉब्लम। Great. Now, let's go to the 50th problem. लंबी क्लास हो गई है, लेकिन टॉपिक काफ़ी बड़ा और इंटरेस्टिंग है, तो सारे एस्पेक्ट्स को हमें टच करना है। और इस टॉपिक्स को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। तो 50th प्रॉब्लम करने से पहले एक जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा। हमने पहली चीज़ जो सीखी आज की, जल्दी से देखिए हमने क्या क्या सीखा, बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले हमने सीखा आर निकालना, दैट इज -ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा। आई एम श्योर आपको पता है क्या कहानी था। ये आपका एक लाइन है ax प्लस by प्लस c, और ये पॉइंट है आपका x1 y1। और अगर आपको ये लेंथ निकालना है ab r, और ये एंगल जो है वो अल्फा बना रहा है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। उसी चीज़ से हमने सीखा कि आर मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो आपने कहा -ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने सीधे यहाँ पे डिस्टेंस निकाल दिया, दैट बिकम्स योर आर मिनिमम। उसके बाद हमने सीखा डिस्टेंस। इसी फॉर्मूले से हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, अगर कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1 और आपको डिस्टेंस लाइन के साथ निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट को आपने आगे ले गए कि अगर दो लाइन पैरेलल है और आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, लाइन का इक्वेशन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। तो आप इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर आपने सीखा कि आप इसका ट्रांसवर्स भी निकाल सकते हो। आपको अगर इसका ट्रांसवर्स निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स निकालना है, जो इंटरसेप्ट है ये निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए कि ये भैया एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है। अगर अल्फा बना रहा है तो आप सीधे पुट करोगे दिस लेंथ L इज मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन A cos अल्फा प्लस B साइन अल्फा। ये चीज़ें हमने सीखी और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग किया, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है अ लाइन with slope m passes through a comma a, both m and a satisfy the below equation, that is x minus 2 का whole square is equal to x square minus 12. Find the equation of possible lines.
ऑफ पॉसिबल लाइंस। जो भी लाइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसके पॉसिबल आंसर्स आपको निकालने हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू। तो आप जैसा कि जान रहे हैं, अ लाइन विद स्लोप m, आपको स्लोप m निकाल रहा है और पॉइंट दे रखा है, आपको स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म दे रखा है। what you need to do is find m and n, then you have given this quadratic equation to solve it। तो चलते सॉल्व करते हैं। x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12। अगर मैं देखूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12। सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, 4 माइनस 12 इज व्हाट यू कैन से, सॉरी मैंने ये गलत स्क्वायर अप किया है, स्क्वायर कर लेते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12। तो अगर मैं देखूं माइनस 4x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस 16। सो x वुड बी 4। तो आप कह सकते हो कि आपका लाइन का स्लोप क्या है, 4 एंड इट इज पासिंग थ्रू 4,4। तो आप आंसर लिख दोगे y माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सो दिस गोइंग टू बी द इक्वेशन, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, बट इट इज एन इनकम्प्लीट आंसर। अब आप सोच रहे हो इनकम्प्लीट कैसे मैं बोल रहा हूं। आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जहां पे आपने जो आपकी गलती वाली स्टेप है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो आपने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट किया, यहाँ पे गलती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जो आप कैलकुलस जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, लेकिन अभी फॉर अ टाइम बिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्लोप सेटिस्फाई कर रहा है, स्लोप m। और आपको पता है किसी भी लाइन का स्लोप हमेशा फिनाइट नहीं होता, स्लोप इनफिनाइट भी हो जाता है, नॉट डिफाइंड भी हो जाता है। तो व्हाट हैपेंस जब ये नॉट डिफाइंड हो जाए, मतलब क्या पता जब स्लोप इन्फिनिटी पहुंच जाए, तो डेफिनेटली अगर स्लोप इन्फिनिटी पहुंचेगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इन्फिनिटी पहुंचेगा, तो भी इक्वेशन ट्रू है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12 है, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 12 बाई एक्स स्क्वायर। आपको पता है अगर x इन्फिनिटी होगा, अगर x इन्फिनिटी होगा, बस समझिए, घबराना नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 1, दैट्स ओके। तो अगर स्लोप इन्फिनिटी है तो ये काम हो सकता है, ये प्रॉपर क्वेश्चन सही में हो सकता है। तो आप क्या चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, अगर आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काट रहे हो तो ध्यान रखो कि शायद आप एक इन्फिनिटी का सॉल्यूशन इग्नोर कर रहे हो। डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्फिनिटी एक नंबर नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन नहीं मानते हो, लेकिन स्लोप क्या है, स्लोप एक ऐसी क्वांटिटी है जो इन्फिनिटी को एज ए आंसर एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भैया ये जो लाइन है वो 90 डिग्री बना रही हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब क्या कहानी है, एक तो आपने ऑलरेडी आंसर निकाल दिया है कि y माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 4। दिस इज वेरी गुड, वन आंसर। द अदर आंसर इज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 4,4। थीटा 90 डिग्री हो गया है क्योंकि m क्या है, इन्फिनिटी पहुंच गया है, m इन्फिनिटी पहुंच गया है। So what will be the equation of line which is passing through 4,4 and perpendicular to x-axis? So definitely this line is parallel to y-axis and the equation is going to be x is equal to 4. X is equal to 4. So two answers is there, y minus 4 upon x minus 4 is equal to 4 and the second answer is x is equal to 4. तो ये बच्चे गलती करते हैं। एक साल IIT में एक सवाल आया था, let me tell you about that, कि एक कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन था और इट वाज समथिंग लाइक dy by dx प्लस 3 इज इक्वल टू dy by dx माइनस 5। इस तरीके का कुछ सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ आया था और ऑप्शन में दिखा था द कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन, दूसरा था सर्कल, तीसरा था एलिप्स और चौथा था डेटा इनकंसिस्टेंट। डेटा
इनकंसिस्टेंट। तो सारे बच्चे ने जो सॉल्व किया था वो यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या किया था, dy by dx और dy by dx को कट कर दिया था। उसने कहा था अच्छा 3 इज इक्वल टू -5, तो डेफिनेटली डेटा इनकंसिस्टेंट आंसर है। लेकिन यहीं पे बच्चों ने गलती कर दी थी। क्यों? क्योंकि dy by dx +3 और dy by dx -5 अगर दोनों इक्वल हो रहा था, मतलब एक सॉल्यूशन हम मिस कर रहे हैं। dy by dx इज एक्चुअली इंफिनिटी, dy by dx इज एक्चुअली इंफिनिटी, और इंफिनिटी हो गया है dy by dx, तो डेफिनेटली वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर था स्ट्रेट लाइन। बच्चे ने डेटा इनकंसिस्टेंट कर दिया और उसको -1 मिल गया आफ्टर डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और दैट इज व्हाट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। लेट्स सी, आगे अभी बढ़ना चाहिए या so we'll call it a day. We'll call it a day today because already it's like 1 hour 20 minutes. So we'll take another class in which we'll try to cover other portion. So in straight line you will be getting, I think, 3 more lectures, 2 to 3 more lectures in which your straight line would be finished, and then we'll start our sequence and series. Okay, bachcho, all the best. Bye bye, take care.